कुछ थे, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने ऐसा। तो पूरा ट्रस्ट डॉक्टर पे किया हुआ था। लेकिन ये है कि मतलब कि सबसे पहले तो ये देखें कि इस तरह की चीज़ें, ये हकीकत, उसके बावजूद मतलब अगर लोगों के दिलों में कोई नफ़रत इंडियंस के लिए, अगर लोगों के दिलों में कोई ऐसी बात कि यार वहाँ के लोग तो ऐसे हैं, मुझे अगर उनके दिल में अगर नफ़रत हो, उनके दिल में अगर इस तरह की कोई बात हो, तो क्या वो एक पाकिस्तानियों को बुलाते या उनका ऑपरेट करते? और वो भी जब उनके हालात देखे उन्होंने कि यार ये तो उस काबिल ही नहीं है पैसे देने के, तो बाकायदा अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मेडिकल एट अपोलो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट गाइस। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मेडिकल एट अपोलो, द स्टोरी ऑफ पाक टीन अफशीन स्पिनल सर्जरी। आवाज़ द वॉइस से स्टार्ट करते हैं वीडियो। Afshin Gul, a 13-year-old Pakistani girl who spent most of her life with her neck twisted at a 90-degree angle, has undergone life-changing surgery at Delhi's Indraprasth Apollo Hospital. Afshin has never been to school or played with friends because of this condition. She also afflicted with cerebral palsy and had a rare condition that made her neck bend and her head sit at a 90-degree angle. Her father, who was a laborer, died in 2020, but 2 years before his passing, there was a ray of hope for the family. Afshin's eldest brother, Mohammad Yaqub Kumbar, heard about spine surgeon Dr. Rajgopalan Krishnan at Delhi's Apollo Hospital. डॉक्टर कृष्णन के बारे में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। उस लड़के का नाम था महेंद्र आयरवार। तो उसकी जो है ना वो यूट्यूब पे वीडियो थी सर्जरी की। तो उसको मैंने देख के फिर डॉक्टर से रब्ता किया मैंने। फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि कैसे सर्जरी होगी, कैसे इसका इलाज होगा, कैसे इसका वीज़ा होगा। वो हमें जो है सारा कुछ डॉक्टर ने गाइड किया। तो डॉक्टर ने गाइड किया, फिर हम चले आए। Yaqub raised funds through crowdfunding for Afshin's treatment. Finally, Yaqub and Afshin flew to India in November last year and met Dr. Krishnan. Actual diagnosis in the neck was a chronic, neglected, severe atlantoaxial dislocation. That is the C1 vertebra along with the skull tipping over the C2 vertebra, dropping to the left side and rotated 90 degrees. So I don't think I have seen such a severe fixed deformity. And she had spinal cord compression and cervical myelopathy. Cervical myelopathy means compression of the spinal cord leading to neurological dysfunction or deficit in the upper and lower limbs, depending on where the site of compression is. Dr. Krishnan diagnosed Afshin with atlantoaxial rotatory dislocation. First stage was putting her in halo gravity traction. So she had a ring round the skull with pins going into the skull and weights attached to it. When she was lying in bed, weights attached to a bed pulley system, and then when she sat in a wheelchair, weights going through an overhead pulley. So we kept her in traction with gradual distraction and monitoring her clinical and neurological status. Nothing went wrong, for which we are very thankful. After a few weeks, we repeated the scan, which showed that the rotation had diminished, decreased significantly. So from 90 degrees, it had reduced about 60 degrees. And the problem is the dropped head didn't correct as much as I would have wanted. I expected this because in a growing child, after 12 years, the bones adapt. This applies to any part of the body. So she had bony adaptive changes which prevented adequate repositioning of the skull on C2 and the trunk. Second step was the second surgery to release the sternocleidomastoid muscle, which takes origin from the sternum and the inner or medial 1/3 or half of the clavicle collarbone, and then inserts in the mastoid process behind the ear. You can actually see it contracting when I turn the head. So I modified conventional procedures. Rather than just releasing them at the origin and the insertion,
I took out segments, a couple of centimeters top and bottom. The idea behind this was we can't stop the dystonia, but remove the fulcrum so that even if the lever arm keeps contracting, it can't pull on anything. It's been detached above and below. So scans later showed that the deformity was further corrected. So I decided to proceed with surgery, which happened on the 28th of February. I had a long discussion with the family on the Sunday before the surgery. I told them the possible risks. She could die during the surgery, she could die afterwards. She could have infection, she could have further neurological deficit, but over and above all that, the risk of death was high. They understood, and they wrote me a message which I think touched my heart. The family asked, if she does die, how will we get the body back to Pakistan? And I decided I'll do the best to make sure she doesn't die on the table. The surgery on February 28 lasted over 6 hours, and by the end of her neck was straightened. Although she will have to wear a brace for some time for the neck to stabilize. Over the next few months, Dr. Krishnan and his team will monitor Afshin once a week through Skype. जी जनाब। अच्छा राजगोपालन कृष्णा। अच्छा, सबसे पहले तो ये है सबसे कि पहले तो मेरे नाम रट्टा मारा है। हाँ, अच्छा सबसे पहले तो ये है कि ये जो भाई था लड़की का, इसने इसके बारे में रिसर्च शुरू की थी, डॉक्यूमेंट्री देखी। ऐसा लग रहा है कि ये इन तक कैसे पहुँचे। देखिए हमारे लिए, हम जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हो या हम दो हैं, अगर आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएं, किसी चीज़ का किसी मकसद, जबकि इनके पास कोई वसाइल नहीं थे, कोई हालात नहीं थे। अब घर देखकर हमें आइडिया हो रहा है कि उनके माली वसाइल भी मुझे लग रहा है कि बिल्कुल नहीं थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जद्दोजहद में थे कि शायद कोई मुझे ऐसा बंदा मिल जाए, कोई ऐसा बंदा मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए, कोई हल निकल आए। तो इन्होंने पूरी डिटेल तो जाहिर सी बातें बताएंगे नहीं इस वीडियो में। तो उन्होंने बोला मैंने यूट्यूब पे ये वीडियो देखी, तो ये वीडियो इनके पास आई नहीं, ये वीडियो किसी ने सेंड नहीं की, इनकी रिसर्च थी। इस टॉपिक पे उन्होंने रिसर्च किया होगा, कई डॉक्टरों के इंटरव्यूज़ देखे होंगे, तो इनकी डॉक्यूमेंट्री इनके सामने आ गई। अच्छा देखिए, रास्ते कैसे बनते हैं? रास्ते बनते हैं अगर आप चलोगे तो ना। अगर आप देखिए, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं यार आज हमारे पास ये नहीं है, आज हमने ये नहीं किया, मैं ये चाहता था, मैं वो चाहता था, लेकिन क्या है कि रास्ते आपके घर पे आएंगे। आप अगर निकलोगे तो कुछ ना कुछ होगा। तो इन्होंने जद्दोजहद की, इन्होंने मालूमात हासिल की, तो इनसे कनेक्ट हुआ, अच्छा, इनसे रब्ता हुआ। ऐसे भी कह सकते हैं कि हम किसी दरवाजे पे बार बार दस्तक देंगे, तो कभी ना कभी तो खुलेगा, कभी ना कभी तो अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से रिस्पांस मिलेगा। हो सकता है इन्होंने बहुत रिसर्च किया हो जब ताकि इन डॉक्टर तक पहुँचे। और आज मतलब है कि फिर और मज़े की बात सुने, आपको पता है डॉक्टर या कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे होते हैं या इंजीनियर होते हैं, इनसे मिलना मुश्किल है। इनकी लाइफ इतनी बिजी होती है। इनके लिए जो सर्जन है ना, आपको पता है सर्जन एक दिन के अंदर करोड़ों रुपए छाप सकता है। उनका वक्त जो है ना, वक्त उनका पैसा है। वही पैसा। वो कैसे कि हर हॉस्पिटल में इनके नाम लिखे होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। फिर हर हॉस्पिटल में ये पेशेंट देखते हैं, फिर हर हॉस्पिटल में इनके लिए बुकिंग हो चुकी होती है ऑपरेट की, कि इतने ऑपरेट आपने यहाँ करने हैं फलाने दिन। हाँ। तो ये इनकी जो बिजी शेड्यूल होता है कि अब इनके अंदर जितनी क्षमता है, इनके अंदर जितनी हिम्मत है, ये उतना पैसा कमा सकते हैं, उतना काम कर सकते हैं ऑपरेट कर करके। माइनर छोटे छोटे इनके नाम बिकते हैं, इनके नाम की एक वैल्यू होती है कि फ़लाने सर्जन ऑपरेट करेंगे, फ़लाने सर्जन की डेट चाहिए। अच्छा, किसी से स्पेशली मिल भी सकते हैं टाइम निकाल कर, लेकिन बहुत सूख वाले लोग हों, बहुत अच्छी चीज़ हो, तो उनसे चले ठीक है मिल लेंगे। लेकिन इन्होंने एक दूसरे देश के बंदे को, जिनसे कोई जान पहचान ना हो, टाइम दिया, और जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ करना था उनका। यानी कि उनको कोई लालच भी नहीं था कि ये बंदा मुझे पैसे देने वाला है या मोटी रकम में से वसूल कर रहा हूँ तो मैं इसको टाइम दे देता हूँ। बहुत कमाल की बात है। अच्छा, फिर उन्होंने इसको पूरा, पहले तो वो अपने अपने देशों में हैं, आपको पता है कॉल पर ही इनकी सारी डिटेल हो गई बात, तब ये मुतमईन हुए, इन्हें समझ में आया क्या करेंगे। अच्छा, कॉल पे देखिए कांटेक्ट हो गया, बड़ी बात ये। मैं यार बहुत बड़ी बात है। अपना टाइम दिया, उन्होंने कॉल पे भी बात करी, फिर उन्होंने बुलाया इन्हें, फिर इनसे कह रहे हैं कि बिफोर द सर्जरी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई है उनकी फैमिली से, उन लोगों से। और
वो बात मतलब मेरे दिल को दहला दी उस बात ने, जब उन्होंने कहा कि अगर ये मर जाती है तो हम इसकी बॉडी को पाकिस्तान कैसे लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने, यहाँ के डॉक्टर्स ने, यहाँ जहाँ वो लेकर गए थे, जिन जिन हॉस्पिटल्स में वो लेकर गए थे, जाहिर सी बात है पहले तो हाथ पाँव सबसे पहले इंसान अपने कंट्री में ही मारता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत मसले मसाइल हैं दूसरे कंट्री में जाकर इलाज करवाना, ट्रीटमेंट करवाना। तो मुझे याद आता है पहले वीडियो में उन्होंने बताया था कि उनको डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये नहीं बच सकती है, ठीक है ना, अगर आप इसको छुड़वाते हैं या ये सर्जरी आप करवाते हैं। तो ये डिसअपॉइंट हो गए थे, लेकिन वहाँ उन्होंने इनको भरोसा दिलाया कि नहीं, इसको कुछ नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि कहीं पे किसी कंट्री में किसी की डेथ हो जाती है ना, तो फिर वो और कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है कि ये जो डेड बॉडी है ये किस तरह से फिर उसके प्रोसीजर शुरू हो जाएंगे, फिर वहाँ पे ये हो सकता है कि ना ले जा पाएँ, वहीं पे उनको दफन करना हो। अच्छा, तो ये बर्थ के हवाले से भी ये होता है? हाँ, बर्थ के हवाले से, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना मेरी मदर का भी था कि ये इंडियन है, हाँ। फिर वो मना कर रहे थे कि आप नहीं ले जा सकते, तो फिर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हुई थी। तो मुझे तभी लग रहा था कि डेथ और बर्थ इसमें कंट्रीज़ में अगर आप अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में हो तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कई लोग मतलब है कि ऐसे भी मैंने सुना है कि अपने बच्चों को फ़ॉरेन की नेशनलिटी दिलाने के लिए ही बच्चा पैदा होने से पहले ही कहीं और चले जाते हैं, तो कुछ अरसे के लिए अमेरिका या लंदन, वहाँ पे जब बच्चा पैदा वहाँ फिर उस बच्चे को वहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है। ऐसा भी मैंने सुना है, कई लोग ऐसे भी हैं। अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं? मैं हैरान हूँ कि कहाँ तक दिमाग चलता है लोगों का, मतलब मेरा नहीं चला यहाँ तक। तो अरे भाई, एक वाक़या आपकी नज़र में हुआ भी अम्मी का, तो फिर आ गए ना वापस, फिर जहाँ बेनिफिट हो रहा है तो कुछ लोग इस तरह कर भी रहे हैं। खैर, बहरहाल बात हो रही थी कि सबसे पहले तो इन्होंने एक अल्लाह पे और उसके बाद इन डॉक्टर पे भरोसा किया और उन्होंने ऑपरेशन की इजाज़त दी, और उनके लिए भी कह रहे हैं कि हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी ये, कोई नॉर्मल और माइनर चीज़ नहीं थी ये। मतलब फ़र्स्ट टाइम कह रहे हैं कि शायद इस तरह का केस हमारी लाइफ में हमने देखने को मिला। और उनके नज़दीक डॉक्टर ही मसीहा थे, डॉक्टर ही सब कुछ थे, क्योंकि उन्होंने तो पूरा ट्रस्ट डॉक्टर पे किया हुआ था। लेकिन ये है कि मतलब कि सबसे पहले तो ये देखें कि इस तरह की चीज़ें, ये हकीकत, उसके बावजूद मतलब अगर लोगों के दिलों में कोई नफ़रत इंडियंस के लिए, अगर लोगों के दिलों में कोई ऐसी बात कि यार वहाँ के लोग तो ऐसे हैं, अगर उनके दिल में अगर नफ़रत हो, उनके दिल में अगर इस तरह की कोई बात हो, तो क्या वो एक पाकिस्तानियों को बुलाते या उनका ऑपरेट करते? और वो भी जब उनके हालात देखे उन्होंने कि यार ये तो उस काबिल ही नहीं है पैसे देने के, तो बाकायदा। अच्छा, आपको पता है इंडिया जाना भी अगर आपके रिलेटिव ना हो तो ना तो इंडियंस यहाँ आ सकते हैं, अगर आपका कहीं यहाँ सोर्स नहीं है, रिलेटिव नहीं है, जानने वाले नहीं है, ना ही आप वहाँ जा सकते हो। तो इन्होंने, डॉक्टर्स ने बाकायदा सारी चीज़ें, सारी कानूनी कार्रवाई, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपनी जिम्मेदारी पे सारी चीज़ें की होंगी, बुलाया फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना एक पैसे के। बहुत बड़ी बात है यार ये। मैं कहता हूँ कि एक इंसानियत की ऐसी मिसालें हैं कि मैं कहता हूँ वाकई ये याद रखने वाली चीज़ें। अच्छा, हमें बड़ा दर्द दिया जाता है कि इंसानियत सबसे बढ़कर है, इंसानियत सबसे बढ़कर है। मुझे तो लगता है हमें तो मैसेज वहाँ से मिलते हैं। ऐसा ही यकीन अच्छा, हम किसी से इस टॉपिक पे बात करें ना कि वो बहुत अच्छे हैं, तो हमारे पाकिस्तानी इस बात को थोड़ा सा नेगलेक्ट करते हैं, इसको झुटलाते हुए ये कहेंगे कि जी आप किस दौर की बात कर रही हैं, वो ज़माना कुछ और था जब साथ रहा करते थे, जब एक दूसरे के साथ खाया करते थे, एक दूसरे के साथ रहा करते थे, एक दूसरे के साथ एक जैसे कल्चर्स हुआ करते थे। लेकिन अब दौर बदल गया है, अब वो हमें पसंद नहीं करते, अब उनके दिलों में नफरत है। तो भाई 2022 21 मार्च, ये 2022 का ही वाक़या है, ये 2022 का ही इंसिडेंट है। तो आप मुझे बताएं अब कौन सा दौर है? तो इसी दौर का ये वाक़या है। तो अभी तो आप ये इस बात को ऐसे नहीं छुटला सकते ना कि वो पहला दौर था और अभी कुछ और मामला है। मैं कह रहा हूँ कि ना तो ये पहला वाक़या है ना आखिरी वाक़या है। बिल्कुल। कई ऐसे लोग बताते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि कई ऐसे केसेस हैं जो बाकायदा पाकिस्तान से लोग इंडिया गए हैं, इलाज करवाया है। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी हो गया या इंसानियत हो गई या एक जज्बा हो गया किसी को नई ज़िंदगी देने का, तो वहाँ पे है। अगर अच्छा, मदद लेने वाला ज़्यादा बड़ा है या मदद करने वाला? देखिए, जाहिर सी बात है कि मदद करने वाला बहुत बड़ी बात है। तो कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है शायद उनके ऊपर कोई रहमत है ना, बड़ी बात कि हमेशा हमें यही देखने को मिलता है कि वो हमारी मदद करें। कभी कभी ये नहीं देखने को मिलता है कि कोई पाकिस्तानी इंडियन की बहुत मदद कर रहा है, या कोई ऑपरेट यहाँ से हो गया हो, या कोई चीज़, कोई अच्छा खूबसूरत मैसेज यहाँ से गया हो। देखिए सबसे पहले तो रहमत, जैसे आप कह रही हैं ना कि उनके पर करम है, तो जब आप किसी के लिए भला सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके लिए भला होता है। अगर आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो उसके बुरे होने से पहले आपके साथ बुरा होता है। ये 100% सच है। वो मिसालें, इससे पहले कई मिसालें, इससे पहले कई डॉक्टर्स, कई पाकिस्तानी पेशेंट्स का इलाज किया उन्होंने,
तो एक बहुत ही खूबसूरत, इससे पहले हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें मतलब है कि पाकिस्तानियों से पूछा गया था, तो सब ने बड़ा शुक्रिया अदा किया था डॉक्टर साहब का कि बहुत मतलब हम सबसे पहले तो उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने भी लोगों से वो बात हो रही थी इंटरव्यू के थ्रू, वो सारे डिसेंट पढ़े लिखे लोग थे। तो मैं तो कहता हूँ कि बाकायदा ये चीज़ इतनी फैलनी चाहिए, बाकायदा जितने भी पाकिस्तान पे न्यूज़ चैनल हैं, देखिए मुझे लगता है खुशी की बात है, अच्छी बात है, और एक ऐसा चीज़ों को फैलाना चाहिए, ऐसा मैसेज है, खूबसूरत मैसेज है कि जिसमें आवाम के दिल में मज़ीद मोहब्बत पैदा होगी। बाकायदा लोग कहेंगे कि यार हिंदू धर्म से लोग जो हैं वो इस तरह का सोचते हैं, इस तरह का सोचते हैं और करते हैं, और प्रैक्टिकली, और मुसलमानों के लिए यार सब चीज़ें अपनी जगह। दूसरी बात ये, कुदरत की तरफ से उनके हाथों में शिफा रखी गई है कि जो चीज़ें यहाँ पॉसिबल नहीं है वो वहाँ पॉसिबल है, जो ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो पाती वो वहाँ हो जाती है और कामयाब हो जाती है। देखिए सबसे पहले टेक्नोलॉजी के हवाले से, मेडिकल के हवाले से वो वाकई बहुत आगे हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी बहुत आगे हैं, IT से के हवाले से बहुत आगे हैं, बड़े दिल के हवाले से भी मैं कहूँगा बहुत आगे हैं। और सबसे बड़ी बात, नीयत साफ है, लूटना, लालच और इस तरीके की जितने भी आंसर्स हैं इनको दूर रखकर, और वो सबसे पहले इंसानियत के बारे में सोचते हैं। शायद शफा भी तभी है, शायद तभी आगे भी है, और शायद तभी रहमत भी है। मैं कहता हूँ बहुत ही खूबसूरत वीडियो जो हर न्यूज़ चैनल पे एक खबर के तौर पे आनी चाहिए। दोबारा किसी और विषय से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।